Hello, children. Again, I am here with the next para explanation of the poem "The School Boy." Earlier, I have uh, earlier in first two paragraphs I have explained you the feeling of a school boy. The feelings of a school boy. In first para, he has given us the description of the atmosphere, summer is a description of the summer morning, na? And weather of the summer morning, it is very beautiful weather and he is enjoying the sound and the beauty of nature. But in second paragraph he has tell us about his sadness when he goes to school. What does he feels? What does he feel? Na? He is very disappointed. He is very sad. Na? if if there is the thought of going to school. Now third paragraph. Then at times I drooping sit and spend many an anxious hour. That at time. Means it shows the sadness. At that time I drooping sit. Drooping means when I was sitting there my head is down. Drooping means head is down. Then at times I drooping sit and spend many an hours anxious hours. Many and anxious hours. ना क्या कह रहा है? What does he say? What does he say? He says there in the school, when I go to school, then there I sit with my head down and spend my many anxious hours, many tensed hours there. Anxious means चिंता करना, किसी चीज़ की चिंता करना, ना टेंशन करना, ना किसी चीज़ को लेके डिप्रेस होना. दैट इज़ कॉल्ड एंशियस आर. कि मैं जब स्कूल जाता हूँ तो मैं कोई भी हैप्पीनेस फील नहीं करता. आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी. आई गो टू देयर, आई सिट देयर एंड माई हेड इज़ डाउन. जैसे होता है ना कि कोई जब दुखी होता है, कष्ट में होता है, तो क्या करता है, अपना हेड डाउन करके बैठा रहता है ना, कोई हैप्पीनेस शो नहीं करता. तो लाइक दिस आई ऑल्सो sit there. That like this I also sit there. When I was sitting there my head is down and in that position I have spent my many anxious hours. बहुत सारे मैं अपनी बहुत इसी तरह बैठ के अपने हेड डाउन को किए हुए बैठे हुए मैं बहुत सारे अपने घंटे इसी चिंता में निकालता हूँ, इसी दुख में निकालता हूँ. यू कैन से इसी सैडनेस में मेरे बहुत सारे एक टाइम पास होता है. मेरा बहुत सारा टाइम इसी एंशियस में, इसी कष्ट में पास होता है. नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट नॉर सिट इन लर्निंग बोवर्ड्स. ना बोवर्ड्स मीन्स द शैडी प्लेस अंडर ट्री. बोवर्ड्स मीन्स शैडी प्लेस अंडर ट्री. देखिए क्या होता है कि जैसे गांव होते हैं ना, विलेजेस में स्कूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्कूल गांव का होता है तो बहुत उसकी जो बिल्डिंग होती है बहुत मेंटेन नहीं होती है ना, तो जो क्लासरूम होते हैं वो ट्री के नीचे ही होते हैं ना, टीन शेड के होते हैं, ट्री के नीचे होते हैं. तो वही कह रहा है शैडी प्लेस अंडर ट्री. तो जो उसका क्लासरूम है वो भी एक ट्री के नीचे बना हुआ है, तो उसी को कह रहा है. बोर मीन्स शैडी प्लेस अंडर ट्री. ओके, जो उसका क्लासरूम है वो पेड़ की शेड में है, अंडर द ट्री है. तो नॉर इन माई बुक can I take interest nor sit in Bower's learning Bower's. Neither I am taking interest in my book nor I am taking interest in the classroom. ना मुझे ना तो अपनी बुक में कोई इंटरेस्ट है. डिलाइट मीन्स आई एम नॉट टेकिंग हैप्पीनेस, आई एम नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, और ना ही मुझे उस क्लासरूम में बैठने में कोई इंटरेस्ट है ना. I am not taking interest in learning and I am also not taking interest in the classroom. Worn through with the dairy shower. Dairy shower means dull and depressing. ना मैं उस dull and depressing प्लेस में, मैं उस डल एंड डिप्रेसिंग प्लेस में क्या हूँ, बहुत टायर्ड फील करता हूँ ना. आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी देयर इन दैट प्लेस. इन उसको क्या कह रहा है, स्कूल को वो क्या कह रहा है कि डल और डिप्रेसिंग प्लेस है, मैं वहाँ सीखना कुछ पसंद नहीं कर रहा हूँ, मैं उस प्लेस पे खुश नहीं हूँ. आई एम नॉट हैप्पी इन दैट प्लेस
neither I am taking interest in the study, neither I am taking interest in the classroom. So I am very tired in that dull and depressing atmosphere, in that dull and depressing classroom, in dull and depressing school. Now come to the next para. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child which fears and noise but droop his tender wing and forget his youthful spring? You see, in this passage, poet who is speaking in the voice of boy means boy. He is comparing himself with the bird. He is comparing himself with a bird. So he is saying, he is giving us the example of a bird. How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? क्या क्या कह रहा है कि जैसे एक बर्ड होती है, बर्ड इज born for the flying in the sky and for the singing melodious songs ना. तो how can we imagine that a bird can sit in a cage and he can sing very sweetly? जैसे एक बर्ड होती है तो वो किस लिए बॉर्न होती है ना, वो कहाँ अपनी खुशी महसूस करती, वेयर ही फील्स हैप्पीनेस ना, उसकी हैप्पीनेस है स्काई में उड़ना और ब्यूटीफुल सिंगिंग करना ना. तो उसी तरह कह रहा है कि जैसे एक बर्ड का जन्म होता है, एक बर्ड बॉर्न होती स्काई में उड़ने के लिए और ब्यूटीफुल गाने के लिए. वो जब स्काई में उड़ती है, फ्री होती है, उसके पास फ्रीडम होता है, तो उस फ्रीडम से वो खुश होती है और खुश होकर वो मेलोडियस सॉन्ग गाती है. तो कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि अगर हम एक बर्ड को केज में बंद कर दें और वो वहाँ पे हैप्पी हो और अच्छे अच्छे मेलोडियस सॉन्ग गाए ना, लाइक दिस कि इफ़ a bird cannot sit in the imagine, a bird cannot be happy in the cage and he cannot sing beautifully like that. I also cannot stay at the classroom. I am not feeling happy in the classroom. जैसे एक बर्ड केज में रहकर खुश नहीं हो सकती, अपने फ्रीडम को खोकर खुश नहीं हो सकती, हैप्पीनेस फील नहीं कर सकती और सिंगिंग नहीं कर सकती, उसका टैलेंट हम नहीं देख सकते. उसी तरह से अगर एक बच्चा, जैसे कि मैं अगर स्कूल में जाता हूँ, मेरी फ्रीडम ख़त्म हो जाती है और उस फ्रीडम के ख़त्म होने पे मैं वहाँ हैप्पीनेस फील नहीं कर सकता. अगर मेरे पास किसी चीज़, मेरे ऊपर प्रेशर है, तो इस प्रेशर पे मैं काम करके हैप्पीनेस फील नहीं कर सकता. बट हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एंड नॉय ना, यहाँ पे यही कह रहा है कि लाइक दिस अ चाइल्ड हु इज़ फियर्ड and who is annoyed, how can he feel the happiness in the classroom? How can he feel the happiness in that work where he cannot taking interest? How can he learn that thing where he cannot taking interest? जिस चीज़ में उसे इंटरेस्ट नहीं है, वो कैसे वो उस चीज़ को लर्न कर सकता है और कैसे वहाँ पे बहुत प्रेशर के साथ, किसी के प्रेशर के साथ रहने पे वो हैप्पीनेस फील कर सकता है. But droop his tender wing and forget his youthful spring. तो बर्ड क्या करेगी कि वो क्या है, ड्रूप मीन्स बेंड की हुई, अपने फेदर्स को, अपनी विंग्स को बेंड करके क्या करी हुई है, ड्रूप हिज टेंडर विंग. टेंडर मीन्स जो उसकी सॉफ्ट विंग है, जो उसकी कोमल विंग्स है, उनको क्या करेगी, उनको ऐसे झुका कर बेंड करके झुका कर बैठी रहेगी. एंड फॉरगॉट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और जो उसका यूथफुल स्प्रिंग है, जो उसका यूथफुल टाइम है, जो उसका प्राइम एज है, जो उसका उड़ने का और सिंगिंग का टाइम है, वो उसका उस टाइम पर वो अपने क्या है, केज में बंद होकर चुपचाप अपनी विंग्स को लेके झुका कर बैठी हुई है और अपने उस टाइम को भूल गई है कि कैसे, अपने उस टैलेंट को वो भूल गई है कि उसका जो टैलेंट है स्काई में उड़ने का और सिंगिंग करने का, वो टैलेंट भूलकर वो केज में क्या होकर डिप्रेस्ड होकर अपने विंग्स को झुकाकर बैठी हुई है. तो वही यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो बॉय क्या कह रहा है कि जैसे एक अगर चिड़िया को हम लोग पिंजड़े में बंद कर दे, केज में बंद कर दे, तो क्या करेगी, वो अपने टैलेंट भूल जाएगी और वो प्रेशर में कोई काम नहीं करेगी. उसी तरह से अगर किसी बच्चे को
ज़बरदस्ती स्कूल भेजा जा रहा है तो वो भी उसमें हैप्पीनेस फील नहीं कर रहा है और वो भी वहाँ पे कुछ सीखने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। बल्कि अगर वो फ्री होगा, उसे फ्री छोड़ दिया जाए और उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको वर्क करने को दिया जाए तो वो क्या करेगा, उसकी जो उसका जो टैलेंट है वो ज़्यादा निखरेगा, वो ज़्यादा अच्छे से उसको सीखेगा। ठीक है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसका जो टैलेंट है वो ज़्यादा अच्छे से बाहर आएगा। ओके, नाउ इट इज़ क्लियर। ओके, नाउ I will explain you next para in the next video.